Welcome to the post-contest discussion session of Starters 152. I know that we are late for this one because we were having our semester exams. But we'll be posting the discussion consistently after from the upcoming starters. Okay. So let's start with the discussion. So we'll be taking division four of starters 152, and we'll be discussing the first six questions. Okay, and we will not be taking the last one. We'll be taking the first six questions. So, moving quick, let's move to the discussion of the first one. So, here's the first question. The question says that the 45th FIDE Chess Olympiad is currently being running in Budapest. Every round, teams of four players each face off against each other in individual teams. A team receives +1 for winning a game, and zero point 0.5 points for a draw, and 0 for a loss. Okay. A team is said to win the round if they receive slightly more points than the opposing team. And you have to tell, can they win if your favorite team has already won its games and drawn by games and lost to their games. Okay. The important thing to note here is the constraints. The constraint says that x plus y plus z is less than or equal to 4. That means that at max there can be 4 games. Okay. And you just have to print a yes or no. So let me explain you the problem statement. So the question says that your current team, okay, so your current team, that is your team, has basically won X wins, Y draws, okay, and there are Z number of losses. Okay, so that means that in this scenario, whatever the number of matches has been played in any scenario, you your score will be simply X plus Y by 2, right? Because you will be getting +1 for a win and you will be getting zero point 0.5 for a draw, right? And your opponent's score would be, if you have lost a game, your opponent would have won, right? So your opponent's score would be Z plus Y by 2, right? Because zero point 0.5 for draw and Z for winning. Okay. So, so the thing is that mm, if you have to win, okay, you can play like as we saw that x plus y plus z is less than equal to 4, right? So x plus y plus z is less than equals to 4. This means that if there are some remaining matches, there can be a possibility that you might win. Okay. So taking the best case scenario, a best case scenario could be you initially had your score as x plus y by 2. ठीक है, करंटली इतना तुम्हारी टीम का स्कोर था, तुमने इतने मैचेस जीत लिए थे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आने वाले मैचेस हैं, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आने वाले मैचेस भी तुम ही जीत जाओ, तो द रिमेनिंग नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, प्लस देन दिस इज गोइंग टू गिव यू अ फाइनल स्कोर, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल स्कोर. So if this final score is strictly greater than if this final score is strictly greater than the opponent's score, which was z plus y by 2, then in this scenario you are going to win, right? Then in this scenario you're going to win. So simply we can cancel y by 2 from both the sides, okay, given that y by 2 is positive and it is going to be positive, so we can cancel out. So we just have to see that x plus rem is greater than z or not. Okay, I hope this logic is clear, right? Let us see the implementation part. So here I have like taken the inputs. So t is 1 and only one test case is there. So t is taken as 1. So I've called the solve function here, and what I'm doing here is I'm taking x, y, and z here, right? So what is x, y, and z? X is like the number of wins, y is the number of draws, and z is the number of losses.
So what is going to be my like initially I had okay, I need to check that. I need to check that whether my final score is greater than Z or not, right? Because y by 2 is going to be cancel out from both the ends, right? कि y by 2 तो ड्रॉ के लिए इस टीम को भी मिलेगा, तुम्हारी टीम को भी और सामने वाली टीम को भी, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है? व्हाट मैटर्स इज विंस एंड लॉसेस. तो x विंस इनिशियली थे, ठीक है? यू वर हैविंग अ स्कोर एज x, राइट? नाउ व्हाट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मैचेस है, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ मैचेस? टोटल मैचेस इज 4. 4 minus x plus y plus z. If this remaining number of matches is also won by you, that is the best case scenario, right? Best case scenario. So for this scenario, you will be like having this as your x as your final score. So if x is greater than z, then you can simply print a yes, else you print a no. So that was all for this question, I guess. Nothing much is needed here. Okay. Yes. So let's move to the next one. So in this question, the range minimize, you are given an array consisting of n integers. You can delete at most two elements in it, and you have to find the minimum possible value of max of a minus min of a. Okay. Uh, okay. And okay, that is all, I guess. So, um, what we are given here is, let me just erase this. So we are given that we are given an array of integers. Okay, we are given an array, and the constraint is that the array size is greater than equal to 3. Okay, n is greater than equal to 3. Now what you have to do, you can delete. You can delete at most two elements. At most two. That means you can delete less than equals to two elements, right? You need not delete or you may delete. That is like at most two. जरूरी नहीं है कि तुम delete करो. You can delete, but maximum you can delete is two, right? Okay. So मान लेते हैं कि we were having some elements. So this is my first element. This is my second element. This is my second last element. And this is my last element. Okay. Consider these four elements. Okay. So what you can delete is या तो uh, considering that कि I have sorted my array. Okay. Considering that I have sorted my array. Okay. I have sorted. So this is the first element is going to be a minimum. The last one is my maximum. This is my second minimum, or no, this is just greater than minimum, and this is my second last element. Okay. तो या तो मैं पहला एलिमेंट डिलीट करूंगा. Why? Why? Because if I need to like minimize, what is going to be my final answer? My final answer is going to be max of a minus min of a. ठीक है? So what is my intuition is? Intuition is कि if you have to decrease this value, so either you decrease max, right, or you increase minimum. In either of the scenarios, you are going to decrease this whole value, right? Yes. So for this one, this array, जो मैं कह रहा था कि you will be deleting either you will be deleting your minimum, the first element, or you will be deleting the maximum, right? Why? Because मतलब जरूरी नहीं है कि तुम delete ही करो. So I have to consider each case, right? If you are going to pick up any element from in between, like मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट कर दो तो it doesn't matter. Why it doesn't matter? It doesn't matter because minimum and maximum are not going to change. मान लेते हैं कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि तुमने ये एलिमेंट कोई बीच से उठा के डिलीट कर दिया, तो होगा क्या? एरे का मैक्स और मिन बदला क्या? नहीं बदला ना. इफ दिस इज माय ए, सो मैक्स ऑफ ए and min of a are still same, right? So it doesn't
it doesn't change the value of max minus min. So either to change the value, either I have to delete the minimum, or I have to delete the maximum. Right? So what I can delete, I can delete at most two elements. So what can be my all the cases? If I were to take all the cases, if I want to see all the cases, all my cases would be I'm deleting zero element. एक भी element delete नहीं कर रहा हूँ. What is going to be my answer? Simply max minus min. Max of array minus min of array. Okay. If I were to delete first element, oh sorry, one element only. Okay. In this scenario, what is going to be my answer? अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करता हूँ तो या तो मैं वो एलिमेंट स्टार्टिंग से डिलीट करूंगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करूंगा, या मैं लास्ट से डिलीट करूंगा. ठीक है. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माई आंसर वुड बी आइदर इन दिस केस माई आंसर वुड बी, मैंने पहला एलिमेंट डिलीट करा मान लेते हैं. ठीक है. तो माई आंसर वुड बी ARR ऑफ n minus 1. Okay, zero based indexing. This is my last element. This is my max minus ARR of 1. Okay, because I have deleted zeroth element. I have deleted zeroth element, है ना? And this is the one with n minus 1 index. And in this scenario, if I delete this index, if I delete this one, what is going to be my answer? Maximum would be ARR of n minus 2, and minimum would be ARR of 0. Okay? So this is the scenario when I delete one element. Okay. Now let's see what happens when you delete two elements. Okay. So when you delete two elements, there can be three cases. What can be your three cases? या तो तुम शुरू के दो एलिमेंट्स डिलीट कर दो, या लास्ट के दो एलिमेंट्स डिलीट कर दो, या फिर एक एलिमेंट स्टार्टिंग का एक एलिमेंट लास्ट का डिलीट कर दो. These are going to your three cases. Okay. So for all three cases, similarly, you can just generate a simple formula such that, like in this first case, like this is second case, and let's say this one is third case. Okay. In the first case, you will be taking your array from second index to n minus 1. That is the last index. Okay. And in the second case, you will be taking your array from n minus 3, right? From n minus 3 to 0, 0 to n minus 3. And finally, in the last case, you will be taking your element from, like you delete एक एलिमेंट आगे से and एक एलिमेंट पीछे से. So you will be taking 1 to n minus 2, right? So after you have dealt with all these three cases, okay, so what is left? You just have to take minimum of all these cases, right? That is going to be your answer. Minimum of all cases is going to be your answer, right? क्योंकि तुमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली ना, तो एलिमेंट्स डिलीट करने की, नहीं करने की, एक डिलीट करने की, राइट? I hope the logic is clear. Let's see the implementation part here. So I have taken the test cases here. Okay, I am taking test cases. Then I have taken this n. N, what is n? N is my size of array. And then I have initialized, taken an integer array and taken the input, and I have sort. Okay, C++ has this inbuilt function. Okay, called as sort. So you just have to give two parameters here. First one is the pointer pointing to the first element, that is ARR itself, because the address of the starting index is given by the name of the array itself, and the last one till where you want to sort. So I want to sort the whole array, so I'll be passing ARR plus n here. So this is going to sort my array in ascending order, right? Ascending order. And oh, sorry, just a second, let me show. Okay. So I have taken size of the array, I have taken my input here, I have sorted the array, and what I have done here is
I have taken 2 pointers. Okay. I is pointing to start of array. Okay. And J is pointing to end of array. Okay. So what I will do here is I will take minimum of all the cases, like minimum of all the cases. So if I I have initialized my answer with a case when I'm deleting zero element. No element is deleted here. No element is deleted. Okay. So no element is deleted. My answer is going to be max minus min simply. Max is the last element, then the min is the first element. Okay. So I think I don't need these 2 pointers here. So I have not used them. Let us remove it. So what I am doing here is I have taken minimum of the first case, that is deleting zero elements. Then what is this? This is ARR of n minus 2 minus ARR of 0. That means I have deleted one element here, and which is the deleted one? Deleted one is n minus 1. मतलब मैंने आखिरी से एक element delete किया. So my maximum would become ARR of n minus 2 and minimum would remain ARR of 0. ठीक है? And deleting one element from the beginning would give me maximum वही रहेगा n minus 1 and minimum would be ARR of 1 because I have deleted the 0th element. And then these three cases are those three cases जहाँ पे हम दो element delete कर रहे हैं. तो in the first one I have taken into account जहाँ पे हम एक element आगे से एक element पीछे से delete करते हैं. So my maximum would become ARR of n minus 2 and minimum would become ARR of 1. ठीक है? And जब हम दोनों एलिमेंट स्टार्टिंग से डिलीट कर देते हैं, so my maximum would remain ARR of n minus 1 and minimum would become ARR of 4. And this is the case when we are deleting two elements from the last. So this is going to change my maximum to ARR of n minus 3 minus ARR of 0. And taking minimum of all these cases is going to give my answer. I'll just simply print my answer in the last line for each test case. Okay. So that is all for this problem, I guess. Let's move to the next one. So this question says that Chef's team is participating in ICTC World Finals. Okay. The World Finals is going on, and your contest is 300 minutes long. Okay, and you have passed n minutes already. Like n minutes have passed from the beginning, and your penalty, your current time penalty is P. Okay, and at any minute, strictly before 300, 300. Okay, so 300 is going to your entire, and the team can make a submission. So if you make a correct submission, if the submission is correct, you are just simply going to add your current time in your penalty. Okay. So in this case, the time of submission gets added to the team's penalty, and if the submission is wrong, 20 is going to be added as time penalty. Okay, for each wrong submission, right? And team must make a correct submission. Team must make a correct submission before 300, which is the end time, to get that solution right, right? And Chef believes that as long as his team solves the problem and he has final penalty of less than 1000, less than equals to 1000, he will win the contest. Okay. So you have to find the maximum number of wrong submissions the chef can make. Okay. So let me explain the problem here. So in the problem statement says that you are playing the world finals. Okay. So currently the total time is 300. Okay. 300 minutes for the contest. So n minutes have passed and your time penalty currently is P. ठीक है. अब मान लेते हैं कि m से लेके 300 तक, ओके, लेस देन 300 तक फॉर एवरी सेकेंड तुम्हें बस एक सवाल सॉल्व करना है, एंड इफ यू गेट अ रॉन्ग सबमिशन you are going to have 20 as your penalty for each wrong submission. Okay.
and if you get a correct submission, you'll just simply add the current time in your answer. Okay, in your penalty. Okay, current time. So at last, if your penalty is less than equals to 1000, you are going to win the contest, else not. This is your problem statement. Okay, so इसमें करना क्या है, इसमें करना बस इतना सा है कि मान लेते हैं कि हम कहीं बिटवीन में हैं। तो मान लेते हैं कि हम 150 मिनट पे हैं। Okay? So 150 minutes have been passed so now, and you have to go 150 more or less. तो 150 से हम 300 तक जाएंगे। यू कांट मेक अ सबमिशन एट 300, राइट? एट लास्ट जो जिस टाइम पे तुम सबमिट कर सकते हो दैट इज 299। यू कांट मेक अ सबमिशन एट 300। 300 पे कंटेस्ट ओवर हो जाएगा। तो 150 और 299 द लास्ट वन। तो व्हाट यू हैव टू चेक एट ईच स्टेप, ठीक है, 150 से लेके 300 तक। ओके, including 150 and excluding 300. Okay? I am putting inclusion here and exclusion here. ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुम कहीं किसी इस दौरान में इस तुम ये कहीं बीच इंटरवल में हो। सो लेट्स से आई एम एट द ith मिनट। ठीक है, आई एम एट ith मिनट। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस एट ith मिनट पर अगर तुम्हारा इनिशियल पेनल्टी पी प्लस प्लस योर प्लस जो इनकरेक्ट सबमिशन के लिए पेनल्टी लगेगी दैट इज 20 प्लस योर करंट वैल्यू, राइट? If this is going to be less than equals to 1000, what does this mean? This means that कि p plus 20 मतलब कि तुमने ith मिनट पर एक गलत सबमिशन किया। ठीक है, तो पेनल्टी तुम्हारी p plus 20 हो जाने वाली है। सॉरी 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 सॉरी, there's a mistake here. It is going to be multiplied here, right? Because at ith minute you will be having like sorry, I'm confused here. So what I want to say is that मान लेते हैं कि जो भी मैंने कहा अभी, लेट्स लाइक फॉरगेट दैट थिंग, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम कहीं किसी बीच इंटरवल में हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ith मिनट पे हैं और हमने अभी तक जितने रॉन्ग सबमिशंस कर दिए हैं, मान लेते हैं कि उनका काउंट CNT है। ठीक है, काउंट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ रॉन्ग सबमिशंस दैट आई हैव मेड टिल नाउ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने काउंट नंबर ऑफ रॉन्ग सबमिशंस कर चुका हूँ अब तक। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय फाइनल पेनल्टी at ith minute is going to be p plus I p plus count into 20. This is t. Okay, this is t, count into 20. This is going to be my final penalty, right? And if this penalty is like less than equals to 1000 minus I, ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी पेनल्टीज मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, and if this is less than equals to 1000 minus I, मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब कि अभी तक मैंने काउंट नंबर ऑफ रॉन्ग सबमिशंस कर चुका हूँ। ठीक है, एंड व्हाट इज आई एम डूइंग हियर इज 1000 माइनस आई, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि मैं ith मिनट पर मैं सही सबमिशन करता हूँ। अब तक मैंने कितने गलत सबमिशंस कर दिए काउंट। ठीक है, और ith मिनट पर अगर मैं सही सबमिशन करता हूँ तो माय रिमेनिंग अलाउड पेनल्टी would be 1000 minus I, right? Why? I guess this is not much intuitive. तुम इसको ऐसे समझोगे, मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं
मान लेते हैं कि दिस इज अ बिट लाइक ट्रिकियर टू अंडरस्टैंड बट ओके आई ट्राई। सी, मान लेते हैं कि तुम ith मिनट पर हो, ठीक है, ith मिनट पर हो और अब तक तुमने काउंट नंबर ऑफ सबमिशंस कर दिए, ठीक है, काउंट नंबर ऑफ गलत सबमिशंस कर दिए, ठीक है। तुम्हारी पेनल्टी क्या हो जाने वाली है? पी, जो कि इनिशियली थी, प्लस 20 इंटू काउंट, ठीक है। ये तुम्हारी अब तक की पेनल्टी हो गई, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि तुम ith मिनट पे, ये पेनल्टी जुड़ेगी कब? तुम एक सही सबमिशन भी तो करना पड़ेगा। आई एम आई एम लाइक आइटरेटिंग ओवर द रिमेनिंग टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि किस किस टाइम पर मैं सही सबमिशन करूं कि दैट इज माय लास्ट टाइम, है ना? कि या तो उसके बाद कंटेस्ट खत्म हो जाएगा या फिर उस टाइम के बाद मेरा पेनल्टी एक्सीड कर जाएगा 1000 को। दैट इज माय लास्ट टाइम टू सबमिट। अगर मैं वो लास्ट टाइम निकाल लेता हूँ तो वहीं तक मैं मैक्सिमम सबमिशन कर पाऊंगा, है ना? तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट टाइम, ठीक है। तो पी प्लस लाइक काउंट इज नंबर ऑफ सबमिशंस जो अभी तक मैंने गलत कर दी हैं। अब तक की मेरी टोटल पेनल्टी कितनी हो गई? पी प्लस 20 इंटू काउंट, ठीक है। अब फिर मुझे ith मिनट पर आई हैव टू गेट इट राइट ऑल्सो, कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व भी तो करना है, तो आई हैव टू गेट एन एक्यूरेट आंसर ऑल्सो। टू गेट एन एक्यूरेट आंसर मेरी पेनल्टी में क्या जुड़ेगा? मेरी पेनल्टी में जुड़ेगा आई। व्हाट इज आई? आई इज माई करंट मिनट, मतलब जिस मिनट पे मैं हूँ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एडेड इन माई आंसर व्हेन आई गेट एन एक्यूरेट आंसर, राइट? टोटल पेनल्टी ये हुई पी प्लस 20 इंटू काउंट प्लस आई, ठीक है। दिस टोटल पेनल्टी स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू 1000। अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर ये सिचुएशन बनती है, देन आई कैन सिंपली से दैट दैट आई कैन लाइक सर्वाइव ith मिनट, ठीक है। मैं ith मिनट सर्वाइव कर सकता हूँ और मैं क्या करूंगा, अपने काउंट को 1 से बढ़ा लूंगा। आई डू अ काउंट प्लस प्लस, ठीक है। इसको कहने का मतलब ये है कि अभी तक मैंने काउंट सबमिशंस किए थे। P plus 20 into count is going to be my current penalty. And if I get an accurate solution here, I am going to add I here. ठीक है? And if that is less than equals to 1000, I'll do a count plus plus. मतलब कि मैं ये ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि क्या पता कि जो मेरा, अगर मैं काउंट को इंक्रीज करूं, मतलब कि एक गलत सबमिशन और करके देखता हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी ग्रीडी हियर, ठीक है। एक गलत सबमिशन और करके देखता हूँ, क्या पता वो 1000 को एक्सीड ना करे। अगर वो 1000 को एक्सीड करेगा, आई हैंडल इट सेपरेटली, कि लास्ट में मैं चेक कर लूंगा कि क्या पता ये जो करंट जो कंडीशन है, अगर ये 1000 को एक्सीड कर जाती है, अगर दिस बिकम्स 1000 एट एनी टाइम, तो मैं क्या करूंगा, अपने काउंट को 1 से डिक्रीज कर लूंगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला काउंट, आखिरी जो काउंट मैंने इंक्लूड किया होगा अपने आंसर में, वो इंक्लूड नहीं करना था। इस पॉइंट पे भी वो 1000 से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। So I guess that is all for explanation. Yeah, let's see the implementation है that वो ज़्यादा क्लियर होगा उधर। So this is the problem. So implementation part is like I have taken test cases here in the main function and call the solve function. So my solve function takes two values m and p, right? What is m? M is remaining time. Sorry, m is current time and p is current penalty. ठीक है? And I am taking count here. What is doing count? Count is storing uh, current number of wrong submissions. Okay, and I is my like iterator. ठीक है, I am iterating over m to less than 299. ठीक है, why less than 299? क्योंकि 299 is the last time where you can make an AC accurate answer. ठीक है, मतलब 299 पर सबमिट तुमको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि यू हैव टू विन द कॉन्टेस्ट, यू हैव टू गेट एन AC। तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही करना है। यू कांट इंक्लूड 299 मिनट, मतलब 299 पे जाके तुम रॉन्ग सबमिशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई लेस देन।
So this is the same condition which I was talking about. So this is my current time I, and this is my penalty so far. P plus 20 into count. Okay. This plus if I uh, get a correct summation, so I will include I also here. Okay. If this penalty is less than equals to 1000, that means कि मैंने अभी तक अपनी लिमिट एक्सीड नहीं करी है, तो क्या पता मैं एक एक काउंट को और बढ़ा सकता हूँ, तो मैं वो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, बढ़ा लेता हूँ। तो अगर ये गलत हो रहा होगा कि मतलब अगर ये पेनल्टी एक्सीड कर जाएगा काउंट बढ़ाने के बाद, इफ आफ्टर इंक्रीजिंग द काउंट एक्सीड्स, व्हाट आई विल डू, मैं इस कंडीशन को दोबारा चेक करूंगा जब मैं इस लूप से बाहर आता हूँ, ठीक है, आई विल चेक इट अगेन, और अगर ये एक्सीड कर रहा होगा 1000 तो मैं उसको एक से डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो ओरिजिनल कंडीशन पे चला जाए, मतलब कि जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि मैंने आई पे ही अपना काउंट रोक दिया, ठीक है, मतलब आई पे मैंने एक्सेप्ट हो गया मेरा सोल्यूशन, लाइक आई पे आई हैड एक्यूरेट सोल्यूशन, एल्स आई विल बी ब्रेकिंग हियर, बिकॉज अगर वो इस कंडीशन के साथ ही, मतलब अगर काउंट इतना बढ़ गया है कि पेनल्टी एक्सीड कर जा रही है, आई हैव टू ब्रेक हियर एंड आई विल डिक्रीज हियर अकाउंट, ठीक है, बाय 1, and I'll simply print the count. So I guess that was all for the implementation part. Understanding is a bit difficult. I think when you will try on your own, you'll get it. It is nothing much is there to explain, right? Let's move to the next question. So next question is maximize timing distance. So, this question says that you are given n strings, each of length n. The ith string is called SI. The string contains only the characters 0, 1, or a question mark. Okay. So you have to replace every question mark with either a 0 or a 1, hence obtaining n binary strings. So you have to perform these replacements optimally to maximize this sum. This sum. And this f of Sij is defined as Hamming distance between strings Si and Sj. Sorry. So the Hamming distance between two strings is defined as the number of positions at which the corresponding characters are different. Okay. So let me explain the problem statement. The problem statement says that, okay, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि हमको एम बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन है एन लेंथ की, मतलब कि काइंड ऑफ एक 2D एरे जैसा मानो, जिसमें हर स्ट्रिंग जो इनपुट है वो एन लेंथ का है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एन बाइनरी स्ट्रिंग्स है एन लेंथ, एंड यू आर गिवन लाइक these are strings, okay, these are strings of length n each, ठीक है, so what is given to you is each string is going to contain either a 0 or a 1 or a question mark, 0 or 1 or question mark, okay. तो व्हाट यू कैन डू इज कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, उस क्वेश्चन मार्क को तुम रिप्लेस करके या तो तुम उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हो या 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी प्योरली बाइनरी हो जाएंगी। बाइनरी मतलब या तो उसमें 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। और तुमको करना क्या है, फाइनली फाइनली तुमको हैमिंग डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, I just tell you. Just give me a second. Let me clear this canvas because it is going to like lag otherwise. Okay. Let me clear this. Just give me a second.
I hope my screen is visible. So I have made the screen the canvas. ठीक है. So what I was saying कि you are given m strings, m binary strings, ठीक है, of n length. अगर हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देते हैं तो फिर होगा क्या कि प्योरली बाइनरी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी. ओके, these are all going to contain, okay, zeros, ones, and so on. So they are all equal lengths. So what I have to do is I have to like maximize the Hamming distance. Hamming distance क्या है? Hamming distance दो strings के लिए डिफाइन होता है. ठीक है? Pair of strings. ठीक है? तो मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग एस आई है, एक स्ट्रिंग एस जे है. ठीक है? तो एस आई के लिए क्या है कि व्हाट इज गोइंग टू बी माय Hamming distance फॉर दिस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. ओके, एफ ऑफ एस आई एस जे. ठीक है? तो व्हाट इज दैट? दैट इज, मान लेते हैं ये एस आई है एंड दिस इज एस जे. Let's say SI and SJ are 1 0 1 1 0, and SJ is 0 1 0 0 0 1 0 1 1. Okay. So the number of corresponding characters, because all are of same length, right? All strings are of same length. So the number of corresponding characters where these strings are going to differ. मतलब कि alternate, मतलब जीरो एंड वन होना चाहिए, सेम 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 कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एट corresponding इंडेक्स. ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि like if I consider the first index, ठीक है, if I consider the first index, this one, ठीक है, तो यहाँ पे वन है, एस आई में वन है एंड एस जीरो में जीरो है. ओके, तो दिस इज गोइंग टू contribute to my Hamming distance. Okay, for these. Similarly 0 1 and here 1 0, this is not going to contribute and this is again going to contribute. मतलब कि I get a +1, I get a +1 here for this index. Again for this index I get a +1. Again for this index I get a +1 and a +1 for this one. So totally, what if I sum all these, I am going to get 4. Okay. So this is my Hamming distance defined in the question for these two strings. ठीक है. तो अब तुमको Hamming distance overall maximize करना है. ठीक है. You are given n strings. तो n strings के लिए तुमको Hamming distance maximize करना है. ठीक है. तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? So if you are given m strings, sorry, you were not given n, you were given m strings. अब तुम हर इंडेक्स, मतलब कि यू हैव टू सी, मतलब अगर ये तुम्हारी बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं तो अगर मैं इसको ऐसे इंडेक्स वाइज ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो व्हाट माय आंसर मैटर्स इज कि इफ आई चूज, सी, इफ आई चूज दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग, ठीक है, इफ आई चूज दीज टू स्ट्रिंग्स, so what I will be caring about is कि currently I will be caring about, if I'm looking at the ith index, ठीक है, I'll be caring about this value, okay, and then I'll be caring about next में I'll be caring about this value, and then I'll be looking upon this value, and this value, ठीक है. मतलब कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ ना एक टाइम पे, तो उससे हो क्या रहा है कि आई एम जस्ट लुकिंग अपॉन एट वन इंडेक्स, corresponding index, and I just care about this vertical line ना. मतलब कि जहां पर क्या लिखा है, मतलब कि किसी और इंडेक्स पे क्या लिखा है उस स्ट्रिंग में, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय आंसर फॉर दिस कॉलम. इस कॉलम के लिए दो स्ट्रिंग्स का जो हैमिंग डिस्टेंस होगा ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एनी अदर कॉलम. उसमें क्या लिखा है उससे मुझे मैटर नहीं करता ना, क्योंकि एस आई और एस जे में इस कॉलम में यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, दैट इज ओनली गोइंग टू मैटर, राइट. सो मूविंग ऑन विद दिस इंट्यूशन, हमें क्या करना है, हमें हैमिंग डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है. एंड व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट ओनली हैव वन ऑपरेशन. व्हाट इज दैट ऑपरेशन? किसी क्वेश्चन मार्क को
या तो मैं 0 में कन्वर्ट कर दूँ या 1 में कन्वर्ट कर दूँ, दैट इज़ ऑल। ठीक है? तो अब हम मान लेते हैं कि अगर मैं ये चीज़ समझा पा रहा हूँ कि हमको बस एक कॉलम से मतलब है, तो फॉर दिस कॉलम मान लेते हैं, इस कॉलम के लिए हम बात करें, तो मान लेते हैं कि मेरे पास 4 स्ट्रिंग थी, जैसा कि ग्रिड में हम देख पा रहे हैं, तो मान लीजिए 4 स्ट्रिंग्स थी, ठीक है? इफ आई पुल आउट दिस कॉलम, ठीक है? आई विल बी हैविंग 4 वैल्यूज हियर। इफ आई पुल आउट दिस कॉलम, तो या मान लेते हैं यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, ठीक है? मतलब कि देयर वर 3 strings with 1 at this index and 1 string with 0 at this index, ठीक है? तो अब इससे होगा ये कि व्हाट आई वांट टू से इज हैविंग डिस्टेंस इज लाइक स्टेटेड फॉर अ पेयर, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है? मैं अभी एक ही इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिंग्स 4 हैं, ठीक है? मतलब दिस इज द ith इंडेक्स ऑफ सम स्ट्रिंग, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, दिस इज अनदर स्ट्रिंग, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई भी 2 स्ट्रिंग्स को अगर हम चूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ हैविंग डिस्टेंस एक पेयर के लिए डिफाइन कर सकते हैं ना। एंड व्हाट आई हैव टू मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ एफ एस आई एस जे, राइट? एस आई कॉमा एस जे फॉर आई इक्वल्स टू एम प्लस वन टू, सॉरी, आई इक्वल्स टू, सॉरी, नॉट एम प्लस वन, इट वुड बी जे प्लस वन, राइट? इट इज गोइंग टू बी जे प्लस वन एफ ऑफ एस आई एस जे from its outer loop is going from 1 to m, and inner would be going from j equals to I plus 1 to m. Okay. So you have to maximize this thing. So what ये पता हो क्या रहा है? What this ultimately means is कि तुम सारी स्ट्रिंग्स को देखो, लाइक यू सी ऑल दीज m स्ट्रिंग्स, जो कि हमको बाहर वाला लूप बता रहा है कि यू आइटरेट ओवर आई, जो आई आइटरेटर है, दैट इज टेलिंग मी टू आइटरेट ओवर ऑल द स्ट्रिंग्स, and this internal is like telling me to iterate over these indexes, ठीक है? तो सारी स्ट्रिंग्स को देखो और बेसिकली कोई भी 2 स्ट्रिंग चूज करो, ठीक है? यू चूज 2 स्ट्रिंग्स और उनका जो हैंग डिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, एंड यू हैव टू सम ऑल द पेयर्स दैट आर पॉसिबल, ठीक है? इसका मतलब ये है, इफ यू एक्सपैंड दिस थिंग यू विल बी लाइक गेटिंग दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज वेरी मच इंट्यूटिव, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि मान लेते हैं कि मैंने ये जो कॉलम पुल आउट किया था, ठीक है? इसमें 3 वन्स थे एंड एक इसमें 0 था, है ना? तो अगर मैं कोई भी 2 स्ट्रिंग चूज़ करता हूँ इसमें से, ठीक है? कोई भी 2 स्ट्रिंग चूज़ करता हूँ, उन स्ट्रिंग को नाम दे देते हैं, लाइक इफ आई नेम इट एज़ S1, S2, S3 एंड S4, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे जब जो भी पीएनसी लगा लो तुम, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर 4 and if you have to choose 2 strings, so it is simply 4 से 2, right? मतलब कि यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब कि 6 इसमें लाइक डिस्टिंक्ट पेयर्स होंगे फॉर चूजिंग दो स्ट्रिंग्स। तो इफ यू चूज आउट दो स्ट्रिंग्स, मतलब कि 6 स्ट्रिंग्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, एंड फॉर दो 6 स्ट्रिंग्स इस इंडेक्स के लिए, करंट इंडेक्स आई के लिए, है ना? करंट इंडेक्स आई के लिए तुम्हारा हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी योर हैमिंग डिस्टेंस? अगर मानो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है? तो तुम्हारा हैमिंग डिस्टेंस मतलब कि ये वाला जो इंडेक्स है, ये +1 कब यील्ड करेगा? मतलब कि ये तुम्हारे आंसर में इंक्लूड कब होगा? ये इंक्लूड तब होगा जब तुम ऑल्टरनेट वैल्यूज चूज करते हो, मतलब ऐसी स्ट्रिंग चूज करते हो जिसके इसमें मतलब ऑल्टरनेट वैल्यूज है, मतलब या तो 1 0 हो या 0 1 हो, है ना?
ऐसी स्ट्रिंग्स यूज करते हो तो होगा। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि आई वांट टू से इज कि these are your maximum combinations, है ना? And mm, there- and sorry, I guess there is some glitch in recording. Just a second. I hope my audio is audible now. So there was some glitch in my mic. Okay. So so let's see. So मैं क्या कह रहा था यहाँ पे कि हाँ, so 3 was the count of number of ones here, right? 3 was the count of number of ones here, and 1 was the count of number of zeros. तो अब तुम ये देखो कि अगर मैं इन 4 स्ट्रिंग्स को देखता हूँ, है ना? इफ आई टॉक अबाउट दीज 4 स्ट्रिंग्स, ठीक है? अगर मैं इन 4 स्ट्रिंग्स को देखता हूँ, तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ऐसी कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं ऑफ 2 स्ट्रिंग्स such that I'm going to get my answer as plus 1 for this index. Right? So that is nothing but मतलब कि एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसके पास 0 है ना? और 3 स्ट्रिंग ऐसी है जिसके पास 1 है। मतलब कि इस एक स्ट्रिंग के लिए ऐसी 3 स्ट्रिंग्स हैं जिनके पास 1 है। तो अगर मैं इस एक स्ट्रिंग को इन बाकी 3 के साथ पेयर अप कर दूं, आई एम गोइंग टू गेट अ प्लस 1 फॉर ईच पेयर, है ना? दैट मीन्स this simply means that in total for this current index I, what is going to be my contribution in my final answer? That is going to be plus 3, right? क्योंकि 3 ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनके लिए 1 और 0 का मैं पेयर स्टैब्लिश कर पाऊंगा एट दिस इंडेक्स, राइट? है ना? So this simply means that for any index, for current index I, what I have to see, I have to just see the count of 1 and I have to see the count of 0, है ना? And count of 1 into count of 0 is going to contribute to my answer for index I. So what is the left task is, अब हमारे पास बचता सिर्फ इतना सा है कि हम क्वेश्चन मार्क को 1 में कन्वर्ट करें या 0 में कन्वर्ट करें टू लाइक मैक्सिमाइज माय आंसर। आई हैव टू मैक्सिमाइज माय आंसर। तो अब तुम इसमें एक चीज देखो कि करंट इंडेक्स आई के लिए व्हाट इज माय आंसर इज C1 इंटू C0, है ना? तो लेट्स, ये बिल्कुल इस तरीके की तरह है कि तुम इस क्वेश्चन मार्क को या तो 1 बनाओगे या 0 बनाओगे, है ना? तो either you give it to 1, either you give it to count of 1 or you give it to count of 0। तो या तो तुम काउंट ऑफ 1 को इंक्रीज कर सकते हो या तो तुम काउंट ऑफ 0 को इंक्रीज कर सकते हो, है ना? तो अब तुम इसमें ऐसे देखो कि अगर यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रोडक्ट C1 इंटू C0, तो इन दोनों को नियरली इक्वल बनाने की कोशिश करोगे, राइट? वाई? बिकॉज फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वी नो दैट कि if AM is like, from AMGM, we know that if you want to like equate these values, so you have to like make these C1 and C0 nearly equal, है ना? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जब नियरली इक्वल होंगे तभी तुम्हारा ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब वो क्यों होगा? वो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। मान लेते हैं तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन मार्क्स थे, है ना? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 10 क्वेश्चन मार्क्स थे और मान लेते हैं ये 0 0 थे, काउंट ऑफ 0, काउंट ऑफ 1, 0 0 थे। So what you can do is you can either do 9 1 and 1 0. It is going to contribute 9 into 1, and this is simply going to be 9, huh? Or what you can do else you can do is कि तुम 8 1 ले लो और दो दो 0 ले लो। That is also going to the sum is like 8 plus 2 is 10 and 8 into 2 is 16. Or you can do 7 into 3, that is 21. You can do 6 into 4, that is 24. Or you can do 5 into 5, that is 25, right?
And if you move ahead, like if you perform 4 into 6, so that is similar to this one, and then 3 into 7 is similar to this one and this one. So ultimately that is going to repeat. So what is the maximum value? Maximum value जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, that is coming at 5 into 5, right? मतलब कि if I have to maximize this product C1 into C0, I have to make C1 and C0 nearly equal, है ना? I have to make C1 and C0 nearly equal to maximize. And what? How can I make them nearly equal? By converting the question marks either to 1 or to 0, है ना? तो अब मेरे पास बस इतना सा काम बचा कि I have to just maximize for each index, from I equals to 0 to n. है ना? तो इसको ऐसे देखो, ठीक है? तो अब हमारे पास जो भी हम क्या कर सकते हैं, हम हर इंडेक्स I के लिए हम काउंट ऑफ 0, काउंट ऑफ 1 और एक काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? काउंट ऑफ 0, काउंट ऑफ 1 एंड अ काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क वी कैन मेंटेन। तो अब हमारा जो C0 C1 होगा, तो अगर इन दोनों में से कोई एक बड़ा कोई एक छोटा है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि C0 इज लेस देन C1, ये वाला केस है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ केस है, तो अगर ये केस है तो मान लेते हैं कि जो डिफरेंस है इनका, है ना? मतलब C1 माइनस C0, ये जो डिफरेंस है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर ग्रेटर बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस इतना ज्यादा है और क्वेश्चन मार्क्स इनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज कम। तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी जीरोस हैं उन सबको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट? जितने भी जीरोस हैं उन सबको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि जितने मतलब कि क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, दिस डिफरेंस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब कि अगर मैं सारे क्वेश्चन मार्क्स को जीरो बना भी दूं, तो भी C1 माइनस जीरो इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। दिस मीन्स सिंपली मीन्स दिस, है ना? तो मतलब कि C0 कभी C1 की इक्वल ही नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब मुझे हमेशा C0 को ही बढ़ाना पड़ेगा फॉर गेटिंग माई मैक्सिमम आंसर, ठीक है? सिमिलरली अगर वाइसा वर्सा, अगर C1 छोटा होता तो हम C1 से बढ़ा रहे होते, इन विच केस, इन दिस केस, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है? नाउ नाउ व्हाट आई हैव इज, आई हैव की आई नीड टू, तो अब दूसरा केस क्या बचता है? दूसरा केस सिर्फ ये बचता है कि मान लेते हैं अगर जो डिफरेंस है, इफ दैट डिफरेंस वाज लेस देन द काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, इस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम सिर्फ इतना करते कि C1 और C0 में जो भी छोटा होता, C1 और C0 में जो भी छोटा होता, उसको सबसे पहले बढ़ा बढ़ा के C1 या C0 के करीब लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एंड एज सुन एज वो दोनों नियरली इक्वल हो जाते, तो C1 और C0 जैसे ही बराबर हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि C1 और C0 में बचा हुआ जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क है, अगर वो बचा हुआ है, तो हम उन दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, है ना? मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर 5 बचा था, तो हम 3 C1 को दे देंगे और 2 C0 को दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है? माय स्क्रीन इज लैगिंग अ बिट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? सो आई गेस द लॉजिक इज क्लियर है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू मोर इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, okay? And before that, I'll just clear my canvas. I have to clear it again because it is lagging. Just give me a moment. Just erase everything. And then it will be better. Erase
So, let's see the implementation part first. So, this was the question, right? The implementation is this. Okay. So, what I'm doing here is, सबसे पहले I'm taking the uh, सबसे पहले I'm taking the test cases and I'll calling you solve functions. Okay. So, in the test cases, what I'm doing, I'm taking two values, n and m. M is the number of strings, m is number of uh, number of strings, and n is size of string. Okay. N is the size. I'm taking a string vector here, array of string. Okay. So I'm taking the input. Each index symbolizes a string. Okay. I'm taking my answer here. Okay. I'm going from I'm iterating I from 0 to n. Okay. 0 to n matlab 0 to n indicates what? Indicates the index, the current index, right? The index for which I am calculating my answer. ठीक है, तो मैं इंडेक्स वाइज कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे तीन काउंट लिया है, C0, C1 एंड C2। C2 क्या इंडिकेट करेगा? C2 इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, C1 इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ वंस एंड C0 इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब मैं ये कॉलम कॉलम इसमें से निकाल रहा हूँ। ठीक है, J इज माई स्ट्रिंग इंडेक्स, कि कौन सी स्ट्रिंग मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो आई एम एक्सेसिंग ARR ऑफ J, मतलब मैं Jth स्ट्रिंग का ith ith इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ, Jth स्ट्रिंग का ith इंडेक्स। ठीक है, तो ये कॉलम इसमें से निकाल रहा हूँ एंड इफ आई एम चेकिंग कि अगर वो जीरो है तो मैं काउंट जीरो प्लस प्लस कर रहा हूँ, अगर वो वन है तो काउंट वन एंड काउंट टू। ठीक है, तो व्हाट आई एम हैविंग इज कि एक कॉलम में, इन अ कॉलम जो हमारी ग्रिड, ठीक है, इन अ कॉलम आई एम हैविंग C0 नंबर ऑफ जीरोस, C1 नंबर ऑफ वंस एंड C2 नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो अगर मेरा C0 C1 से छोटा है ना, तो मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा C1 और C0 का। एंड इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन C2, मतलब क्वेश्चन मार्क्स कम है और डिफरेंस ज्यादा है, तो सारा का सारा मैं किसको इंक्रीज करूंगा जो कि छोटा है। छोटा क्या है? C0। तो C0 में मैं जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स है वो सब डाल दूंगा, C2 मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई विल सेट C2 टू जीरो। एल्स मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स वर नॉट इनफ, सॉरी, दे वर मोर इन नंबर, मतलब इसका दूसरा पार्ट। तो मैं क्या करूंगा कि जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों को बराबर बनाने के लिए जो भी डिफरेंस रिक्वायर्ड है, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आई एम गोइंग टू ऐड इन द वन विच इज लेस। सो हेयर C0 इज लेस देन C2, सॉरी C1। तो मैं C0 को C1 के बराबर बना लूंगा ये डिफरेंस ऐड करके। ठीक है, एंड आई विल सब्ट्रैक्ट दीज नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम माई क्वेश्चन मार्क्स। सो C2 इज गोइंग टू स्टोर माई रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। इस केस में C2 जीरो होगा, इस केस में आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली दिस इज द अदर पार्ट ऑफ इट जहाँ पे काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन से ज्यादा हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अगेन आई विल चेक कि डिफरेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर है तो मैं सारे वंस को सारे क्वेश्चन मार्क्स को वन बना दूंगा एंड आई विल सेट C2 टू जीरो। एल्स आई विल डू आई विल इंक्रीज C1 सच दैट कि C1 C0 बराबर हो जाते हैं एंड आई विल डिक्रीज C2 बाय डिफरेंस। एट लास्ट इतना सब करने के बाद, है ना, इतना सब करने के बाद आई विल बी लेफ्ट विथ C2। अगर C2 मतलब कि अगर क्वेश्चन मार्क्स अभी भी रिमेनिंग है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देम। ठीक है,
I will distribute C2 by 2. This is like a floor value of C2 by 2. I will distribute C2 by 2 to C0 and जो remaining है C2 minus C2 by 2. This is the remaining values. ये सारे मैं वंस को दे दूंगा तो मैं आधा आधा बांट दिया ऑलमोस्ट आधा आधा ठीक है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर मतलब करंट इंडेक्स के लिए आंसर इज C1 इंटू C0 है ना ये एक इंडेक्स के लिए दिस इज फॉर इंडेक्स आई ठीक है एंड आई एम आइटरेटिंग ओवर ऑल इंडाइसेस ठीक है so going from 0 to n I'm iterating over all the indices I will get C1 into C0 for all the indices and I'll include it in my answer and I'll simply print my answer at last ठीक है so this was all for this question I guess okay so let's move to the next one so this question anti-palindrome queries ठीक है the question says that you are given an array b of length and it is called an anti-palindrome if no pair of opposite elements are equal मतलब कि if bi is not equals to b m plus I m plus 1 minus I ठीक है if this is not satisfied for every index it should hold for every index then it is called an anti-palindrome and we say array b as beautiful if every cyclic rotation of b is an anti-palindrome ठीक है you are given with array A and you are given with queries Q. तो हर query में you are given with L and R and you have to tell कि L से R तक जो सब array है of B from L to R if that is beautiful or not. Is it possible to rearrange the elements of B to make it beautiful or not? ठीक है. So this is the question, right? So let me explain it here. So my question says that कि सबसे पहले वो ये डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज ब्यूटीफुल ऑफ एरे लाइक मान लेते हैं कि एरे बी है ठीक है तो माय एरे बी ब्यूटीफुल कब होगी वो एरे बी ब्यूटीफुल तब होगी जब जब मेरा ये वाला जो इंडेक्स है ना इसका जो लाइक पैलिंड्रोम के लिए आगे से और पीछे से स्ट्रिंग का बराबर होना नेसेसरी होता है ना तो अगर एंटी पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं इसका जो कॉन्जुगेट इंडेक्स है जो कि पीछे से पहला इंडेक्स होगा है ना दिस इंडेक्स अगर इन इंडेक्स पे सेम वैल्यू नहीं आती है तो दिस इज इंडेक्स आई एंड दिस इज इंडेक्स आई माइनस एम प्लस वन ठीक है वेयर एम इज द size of array b ठीक है I minus m plus 1 if these indices are not having same value so that is going to be my beautiful array okay that is going to not मतलब anti palindrome होगा वो and this I have to ensure for all i's so now what I will be given like L and R in each query ठीक है अब मुझे ये बताना है कि from L and R like the sub array from L to R मतलब इतना हिस्सा जो है array का from L to R ठीक है this part is this beautiful or not ठीक है this part तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि array beautiful बन कैसे रही है क्योंकि हम इसमें साइक्लिक रोटेशंस की भी बात कर रहे हैं है ना मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं अभी तुम ये array मान तो अगर हम इस array की बात करते हैं एक सेकेंड so yes so coming back to the question so I was saying कि हाँ तो हमको क्वेश्चंस में गिवन है कि वी आर गिवन विद एल एंड आर ठीक है तो लेट्स कंसिडर दिस एरे ठीक है हम एक एरे के लिए बात करते हैं पहले तो इसमें ये देखो कि सबसे पहले हमको साइक्लिक आइटरेशंस की भी बात करनी है इसमें ना तो मान लेते हैं मैं एरे में नंबर्स दे देता हूँ कुछ अच्छा उससे पहले तुम ये देखो कोई भी
ऑड साइज्ड जो एरे होगी, जैसे कि ये 5 लेंथ की है ना? दिस इज़ 5 है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी अगर ऑड साइज़ की एरे होगी, वो कभी भी एंटी पैलिंड्रोम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मान लेते हैं कि तुमने फर्स्ट और फिफ्थ इंडेक्स पे अलग रख दिया कोई एलिमेंट, मान लेते हैं तुमने सेकंड और फोर्थ पे भी अलग रख दिया, है ना? लेकिन व्हाट अबाउट दिस? तो हर ऑड इंडेक्स के, हर ऑड लेंथ के केस में हमेशा ऐसा होगा कि जो बीच वाला जो भी इंडेक्स है उसके लिए जो हम यूज कर रहे थे ना, वी वर चेकिंग पी आई एंड पी आई प्लस 1 - m, है ना? दिस इज गोइंग टू बी सेम। यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखोगे दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट? तो इसलिए वी कैन कंक्लूड कि हम ऑड इंडेक्स ऑड लेंथ के लिए तो नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? वी कांट मेक एनी एरे ब्यूटीफुल। तो एक केस तो सिंपली मेरा ये हो जाता है कि अगर जो एल और आर जो क्वेरी अगर मुझे दी है, तो अगर एल से आर तक जो सब एरे अगर वो ऑड साइज की है, तो कोई मतलब नहीं बनता उसको चेक करने का कि क्या कहते हैं वो गुड है या नहीं। वो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड। सो आई कैन से कि इफ आर माइनस एल प्लस वन, व्हाट इज दिस? दिस इज द साइज ऑफ सब एरे, आर माइनस एल प्लस वन। अगर दिस इज ऑड, then if this is odd, so my array is not beautiful. My answer is going to be no. Now let's see if what if it is even, right? What if अगर ये even है तब क्या करना चाहिए हमको? तब हमको ये करना चाहिए कि let's analyze। तो मान लेते हैं कि ये हमारी even वाली array थी, even 4 and 5, okay? So it is of size 6। तो अब मैं इसमें नंबरिंग दे देता हूँ, like 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay? तुम इसमें ये देखो कि अभी मैं जैसे मान लेते हैं अभी मैं एलिमेंट 1 के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, और मैं 1 के रिस्पेक्ट में ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि इस एरे के, इस मतलब ये जो एरे है, इस एरे में जितने भी परम्यूटेशंस होंगे, है ना, साइक्लिकली, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको साइक्लिक रोटेट करूंगा। तो 1 अभी यहाँ पे है, कभी 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, एंड सो ऑन, ठीक है? तो इट इज लाइक गोइंग टू रोटेट एंड आई विल सी कि व्हाट आर दोज इंडाइसेस जो कि 1 से कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है? आई विल मार्क दोज इंडाइसेस, ठीक है? तो देखते हैं 1 से अभी करेंटली यहाँ पे अगर 1 है, तो 1 किसके साथ कंपेयर हो रहा है? 6 के साथ, राइट? दैट इज द कॉन्जुगेट। आई विल मार्क 6, ठीक है? मान लेते हैं मैंने 6 को मार्क कर लिया। नाउ अब नेक्स्ट, अगर मैं इसको साइक्लिकली शिफ्ट कर देता हूँ, मान लीजिए साइक्लिकली राइट शिफ्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? साइक्लिक राइट शिफ्ट करने पे क्या होगा? तो 6 मेरा राइट शिफ्ट किया तो 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? आई एम चेकिंग फॉर फर्स्ट इंडेक्स और 6 मेरा ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है? तो अब क्योंकि मेरा 1 यहाँ पे है, तो 1 किससे कंपेयर करेंगे हम? फोर्थ वाले से, ठीक है? तो हम 4 को भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? नाउ लेट्स सी अब आगे क्या होगा, ठीक है? अब हम एक बार फिर से एरे बना लेते हैं। तो एक बार शिफ्ट करने पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6, 1, 2, सॉरी दिस इज 5, राइट? दिस इज 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी। फर्स्ट इंडेक्स पे 5 आएगा, 6, 1, 2, 3 एंड 4, ओके? हाँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? इट इज विजिबल नाउ। अब तुम ये देखो कि अब क्या हुआ इसमें। तो अब मेरे पहले से एलिमेंट्स कौन कौन से मार्क थे? आई एम सीइंग 1, ठीक है? मार्क्ड आर 6 एंड 4, 6 एंड 4 आर मार्क्ड। अब मैं 1 को यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा हूँ? मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? आई विल मार्क 2, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ, नाउ इट इज गोइंग टू रिपीट, ठीक है? अगर 1 को तुम आगे और शिफ्ट करते भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा,
तो जब ये एक और बार शिफ्ट करोगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 4 से कंपेयर हो रहा होगा। सॉरी, 1 वुड बी कंपेयर्ड विद, हाँ, 1 वुड बी कंपेयर्ड विद 6 अगेन, है ना? 6 ऑलरेडी मार्क्ड है, तो मतलब तुमको बस हाफ ऑफ द एरे तक देखना है। हाफ ऑफ द एरे तक यू विल गेट ऑल योर इंडाइसेस व्हिच यू हैव टू मार्क, है ना? तो मतलब अगर हम 1 के लिए देखते हैं, तो 1 के लिए अगर मैं देखूं तो 2 3 4 5 एंड 6, तो कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो मेरे मार्क हो रहे हैं? दोज आर दोज आर लाइक 6 2 एंड 4, राइट? 6 2 एंड 4, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इसको दोबारा किसी और नंबर के लिए भी ट्राई करोगे ना, लाइक इफ यू सी फॉर 2 और 3, तो तुमको एक कॉमन पैटर्न पकड़ में आएगा, एंड दैट पैटर्न इज कि द नंबर्स यू आर कंपेयरिंग, है ना, वो कॉमन सेंस वाली बात भी है। यू विल गेट एन इंट्यूशन अगर तुम इसको करोगे तो, कि अगर मैं जिस भी नंबर के लिए देख रहे हो, उसको सबसे पहले तुम सबसे लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे प्लेस करके देखो, और देखो कि तुम कौन कौन से इंडाइसेस कंपेयर करने वाले हो, तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम उसका जस्ट एडजेसेंट वाला, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाला, फिर अगेन एक छोड़ के नेक्स्ट वाला, एंड सो ऑन। ऐसे तुम इन इन इंडाइसेस से इनको कंपेयर करने वाले हो, ठीक है? जस्ट उसका एडजेसेंट वाला, फिर एक छोड़ के एक, और फिर अगेन एक छोड़ के एक, एंड ऑल्टरनेटिवली सो ऑन विद कंपेयर, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे 6 से तुम अभी कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? 2 से कब कंपेयर करोगे? तुम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कब कंपेयर करोगे, खुद सोचो। तब कंपेयर करोगे जब 1 3 के प्लेस पे रहा होगा, है ना? और 2 यहाँ कहीं रहा होगा, या फिर मतलब ये तब होगा जब तुम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। अगर तुम राइट शिफ्ट कर रहे होगे तो 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अल्टीमेटली यू हैव टू लाइक एनालाइज दोस पोजीशंस जहाँ पर ये हो रहा है कि यू आर मार्किंग देम, राइट? तो तुम इसमें ये देखो कि नाउ व्हाट द थिंग इज कि हर हर इंडेक्स के लिए, मतलब तुम हर अगर इंडेक्स के लिए देखना चाहो, तुम कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं। मैंने इन इन इंडाइसेस को मार्क करके किया गया, मैंने ये पता लगा लिया कि ये सारे वो इंडाइसेस हैं, है ना? मैं स्क्रीन एग्जाम प्रिंसिपल में, इज देयर एनी लैग और समथिंग? सेकंड, लेट मी रीसेट द कैनवस वंस अगेन, ओके? Give me a second.
So I guess my screen is visible now. तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं कि ये हमारी इवन लेंथ की एरे है एंड वी कंक्लूडेड दैट कि हमने वो इंडाइसेस मार्क कर लिए थे, वन के लिए वो इंडाइसेस मार्क कर लिए थे जो कि एक दो तीन चार पाँच छः सात, दिस इज ऑड, लेट मी मेक वन मोर। ओके, so these are all those indices, है ना, जिन पे मुझे चेक करना है। मतलब मैं इनको मार्क करके कर क्या रहा हूँ, इनको मार्क करके ये कर रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट के लिए तुम इन इंडाइसेस को मार्क कर रहे हो ना, लाइक आई एम मार्किंग फॉर दिस वन, तो इन इंडाइसेस पर, इन ऑल दोज इंडाइसेस तुम सेम एलिमेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि तुम कभी ना कभी इनसे वन को कंपेयर करोगे ही करोगे। मतलब वन यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है, तो वन यहाँ पर नहीं आ सकता है, मतलब यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा, तो टू आएगा या थ्री आएगा। क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि लेट मी शो यू कि क्वेश्चन सेज दैट, हाँ, क्वेश्चन सेज दैट योर एलिमेंट्स आर लाइक वन से थ्री, ओनली यू कैन हैव इन योर एरे आइदर वन और टू और थ्री। क्वेश्चन सेज दिस थिंग, ठीक है। तो अब तुम इसमें ये देखो कि तो इफ दिस क्वेश्चन सेज दिस थिंग, ठीक है, अब तुमको या तो उसमें वन होगा या टू होगा या थ्री होगा। मतलब कि अगर तुम वन के लिए देख रहे थे ना, यू आर सीइंग फॉर वन, तो यू कैन आइदर कीप टू और थ्री, है ना। तो अब तुम ये देखो कि कम से कम ऐसा होना ही चाहिए, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट के वैलिडेशन की बात करूं, ठीक है? अगर ये इवन लेंथ की एरे है ना, और मैं वन के लिए देखता हूँ, तो मेरा कौन कौन सा इंडेक्स देखना पड़ेगा, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो इफ यू काउंट अप दीज, तो यू विल रियलाइज कि दिस इज नथिंग एन बाई टू। ओके, मतलब कि हमेशा एन बाई टू की एन इज इवन, है ना, तो हमेशा n बाई टू नंबर ऑफ इंडाइसिस यू विल कंपेयर। हर इंडेक्स को तुम n बाई टू नंबर ऑफ इंडाइसिस से कंपेयर कर रहे होगे हमेशा, ठीक है। ऑन दीज इंडाइसिस यू विल बी कीपिंग एनी अदर वैल्यू अदर देन वन, है ना, वन के अलावा कुछ और रखना पड़ेगा। सिमिलरली ये केस टू के लिए भी हो सकता है और थ्री के लिए भी हो सकता है, तो हमें तीनों केसेस देखने पड़ेंगे। अल्टीमेटली अगर मैं तीनों केसेस को जनरलाइज करूँ, तो व्हाट विल हैपन कि मान लेते हैं अगर मैं वन के लिए देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे n बाई टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे चाहिए जो कि वन की इक्वल ना हो। तो आई वॉन्ट एग्जैक्टली n बाई टू, एग्जैक्टली n बाई टू, ठीक है। n बाई टू से ज्यादा नहीं और कम नहीं, क्योंकि फिर कोई ना कोई एक इंडेक्स छूट जाएगा, और ज्यादा होगा तो यू हैव टू लाइक उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं n बाई टू से ज्यादा किसी एलिमेंट का काउंट हो जाता है ना, तो या तो तुम उसको यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लेते हैं कि वो एलिमेंट टू था, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि तुमने यहाँ पे टू रखा, यहाँ टू रखा और यहाँ टू रखा, तो ये वन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे भी टू रख दिया, तो अब तुम ये देखो ना कि ये टू और टू सेम हो गए ना। अगर तुम टू के रिस्पेक्ट में देखो तो टू किस किस से कंपेयर होता, इससे कंपेयर होता, एक छोड़ के फिर इससे कंपेयर होता, फिर एक छोड़ के इससे कंपेयर होता, है ना। तो अल्टीमेटली तुम ये कंडीशन वायलेट कर दोगे, है ना। तो यू विल, इफ यू थिंक ऑफ दिस यू विल रियलाइज कि फॉर एनी इंडेक्स वन, लेट्स से कि इफ आई टॉक अबाउट वन, इफ आई टॉक अबाउट वन, तो अगर मैं वन के लिए एक वैलिड लाइक फीलिंग ढूंढना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे वैल्यूज को अरेंज कर सकता हूँ, तो वन के लिए आई वॉन्ट एग्जैक्टली एन बाई टू ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो वन की इक्वल नहीं है। तो वन की इक्वल कौन नहीं है, या तो टू और थ्री, है ना, या तो टू और थ्री, ओके, एंड बाकी सारी बची पोजीशंस पे, ओके।
बाकी सारी बची पोजीशंस पे आई विल कीप 1। ठीक है? राइट? तो इसका मतलब कि तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि तो जो इंडाइसेस मैंने मार्क किए हैं ना, उन इंडाइसेस पे उनको 1 नहीं रखना है, यू नॉट इक्वल टू 1 रखना है। दैट मीन्स कि एंड द नंबर ऑफ सच इंडाइसेस आर n/2। तो दिस सिंपली मीन्स कि अगर तुम तीनों केसेस को कंबाइन कर दो तो ये समराइज होके तुमको एक ऐसा इंट्यूशन मिलेगा कि इट सिंपली मीन्स कि तुमको n/2 टाइम्स कोई एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, या तो 1 या 2 या 3। बचा हुआ जो n/2 है, दैट शुड बी लाइक द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स। सम ऑफ कॉन्जुगेट्स कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं 1 की बात करते हैं, ठीक है? 1 वाले केस की बात करते हैं, तो हम 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है कि n/2 नंबर ऑफ वन्स है मेरे पास, ठीक है? n/2 इज़ द काउंट ऑफ 1 एंड बचा हुआ n/2 इज़ गिवन बाय 2 एंड 3 कंबाइंडली। 2 एंड 3 आर कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जिनको नहीं रख सकते हैं उस इंडेक्स पे जो 1 से कंपेयर हो रहा है। तो n/2 मुझे एग्जैक्टली n/2 1 चाहिए एंड एग्जैक्टली n/2 2 और 3 का टोटल काउंट चाहिए। मतलब हो सकता है 2 8 भी ना हो सकता है सारे n/2 3 हो, है ना? या फिर हो सकता है मतलब दोनों दोनों मिल के n/2 बना रहे हो। तो दिस इज गोइंग टू बी माई एक फीलिंग, और कि मैं एरे को कैसे पढ़ रहा हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कि एरे कैसी भरी चाहिए। आई ओनली केयर अबाउट दिस थिंग कि n/2 एग्जैक्टली आइदर कोई एक होना चाहिए। अब हम 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो हम 2 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते थे। मान लेते कि n/2 2s होते मेरे पास, है ना? तो और अगर बचा हुआ जो n/2 है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एंड 3, तो ये एक वैलिड आंसर होगा, है ना? सिर्फ यही एक सिनेरियो है जहाँ पे साइक्लिक रोटेट करने पे भी तुम्हारा जो एरे है वो एंटी पैलिंड्रोम रहेगा, ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, याद करो शुरू से। मैंने तुमको बताया था कि इफ एरे का साइज ऑड है तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, और इवन केस में भी सिर्फ यही केस है जहाँ पे आंसर पॉसिबल है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। दैट इज नॉट मच हार्ड, ठीक है? थोड़ा सा लाइक ट्रिकियर है क्योंकि ऑब्वियसली वी आर डीलिंग इन टू डायमेंशंस, है ना? टू डायमेंशंस है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। We'll see the implementation in just a second. Okay. So now let's see the implementation of this. So I have taken test cases here and I call the solve function. Let's see what solve function has. Solve function has two values n and q. Okay. N is the size. N is size, and what is q? Q are number of queries. Okay. Number of queries. So I'm taking my array as input here. Okay. So this array is going to contain what? This array is going to like in this implementation part, right? Implementation part, I am using idea of prefix sum. ठीक है? Why idea of prefix sum? Let me explain you it. Okay? कि मतलब मुझे कि क्या चाहिए था? मुझे काउंट ऑफ 1, काउंट ऑफ 2, काउंट ऑफ 3 चाहिए ना, राइट? और वो मुझे इंडेक्स वाइज चाहिए क्योंकि मुझे क्वेरी में क्या मिलेगा? मतलब ये तो एक एरे के लिए बात थी, ये तो हमने नॉर्मलाइज कर लिया कि एरे था। पर मुझे तुम ये देखो कि मेरे को क्वेरी तो एल और आर पे मिलेगी, राइट? आई विल बी गेटिंग क्वेरी एल कॉमा आर। मुझे एल और आर के लिए अगर इसको जनरलाइज करना है तो आई हैव टू सी कि एल तक काउंट ऑफ 1 क्या था, है ना? और आर तक काउंट ऑफ 1 क्या था? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना? लाइक एल से जस्ट पहले काउंट ऑफ 1 क्या था? इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, राइट, आई विल बी गेटिंग माय आंसर
एल से आर के बीच में काउंट ऑफ वन क्या था? यस और नो? यस, ओके। So I hope this is clear. This can be done easily by maintaining a prefix sum. Yeah, you can simply maintain a prefix sum. तो वही मैं इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा हूँ। हाउ कैन यू मेंटेन अ प्रीफिक्स सम? मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारी गिवन एरे थी, ठीक है? गिवन एरे वाज लाइक 2 1 3 1 2 2, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऐसे 3 प्रीफिक्स सम बना लूँगा। एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए। मतलब एक 2D एरे की तरह इम्प्लीमेंट करो उसको कि 1 के लिए 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है? या तुम 3 अलग-अलग 1D एरेज़ भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है? तो 1 के लिए अगर हम प्रीफिक्स सम देखें, मतलब प्रीफिक्स ऑफ 1 देखें, प्रीफिक्स सम नहीं मतलब प्रीफिक्स सम जैसा है, सो आई एम कॉलिंग इट प्रीफिक्स सम अगेन एंड अगेन, बट इट इज़ लाइक प्रीफिक्स काउंट, ठीक है? तो यहाँ तक काउंट ऑफ 1 0 था, देन यहाँ पे काउंट ऑफ 1 1 हुआ, यहाँ तक भी 1 है, देन आई गेट ऑफ 1 हियर, तो यहाँ काउंट ऑफ 1 2 हो गए, 2 एंड देन 2, ठीक है? अगर कोई मुझसे पूछता है कि आयुष, या जस्ट टेल मी कि इफ आई गिव यू दिस एज एल एंड दिस इज आर, तो इस सब एरे में अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितने वंस हैं, है ना? तो मैं क्या करूंगा, आई विल सी कि मेरा आर पे, लाइक आई गिवन एल एंड आर, आई विल सी कि मेरे आर का काउंट ऑफ वन क्या था, तो वो 2 है ना? और लेफ्ट से जस्ट पहले काउंट ऑफ वन क्या था, वो 0 है। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट देम, है ना, 2 माइनस 0, दैट इज गोइंग टू बी 2। This is going to give me the count of 1 between L and R. As you can see कि यहाँ पे एक 1, यहाँ पे एक 1 है, तो 1। Similarly, you can maintain a prefix for 2 and 3 as well, right? तो यहाँ पे भी अगर if you were to like maintain prefix for 2 and 3, तो तुम क्या कर सकते हो कि 2 के लिए 1 होगा, यहाँ पे again 1 1 1, then 2 then 3, and similarly you can do for 3. So let's move to the implementation part again before move to the so as you have seen that यहाँ पे मैं पहले अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि आई हैव टेकन माय एरे, ठीक है? आई हैव टेकन माय एरे एंड आई हैव क्रिएटेड अ 2D like vector here instead of taking 3 separate 1D arrays, ठीक है? You can take a 2D array, ठीक है? 2D array, इसमें क्या है कि लाइक दिस इज ऑफ साइज n plus 1 for one based indexing and 4 for again one based indexing, क्योंकि I will be having like count of 1, count of 2, count of 3. Okay. So let's see कि I will iterate over 1 to n and I will see कि if uh, like prefix sum का like you do in prefix sum, it is same as कि count of I 1, मतलब कि 1 का ये array है, like I'm seeing the count of 1 एंड ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी जो प्रीवियस इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक है? वो सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी? जब तक करंट इंडेक्स पे लाइक ARR ऑफ i-1 बाय i-1, क्योंकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहा हूँ। तो जो मेरी गिवन एरे है उसमें 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, उसके करंट इंडेक्स पे अगर 1 है, आई विल डू अ काउंट प्लस प्लस विद करंट इंडेक्स, एल्स आई वोंट। दिस इज लाइक अ प्री कंप्यूटेशन पार्ट। तो यू विल जनरेट अ प्रीफिक्स, ठीक है? 2D प्रीफिक्स है। अब क्या करना है कि यू आर टेकिंग क्वेरीज है, so यू आर टेकिंग LNR in each query, okay? You are iterating from 0 to Q. So I have calculated size here, R minus L plus 1. If my size is odd, है ना? If my size is odd, my answer is simply no, and I will continue. So I will move to the next query. Then if it is not odd, what I will do, I will just maintain count of 1, count of 2, and count of 3 from L to R, right? From L to R, count of 1, count of 2, and count of 3, right? Okay. Then I will take a flag here, like a bool value. So if count of 1 is size by 2, I'm taking all the 3 cases, ठीक है? मैं सारे 3 केसेस की बात कर लेता हूँ कि अगर काउंट ऑफ 1 साइज बाय 2 है, मतलब वही n by 2 जो मैं बात कर रहा था,
like size is n. Okay. If count of 1 n by 2 है तो count of 2 plus 3 जो कि इसका conjugate है that should be exactly equal to size by 2. That is going to be my good value, so that is going to make my flag as true. ठीक है. Similarly, for count 2 and count 3, अगर count 2 n by 2 है तो count 1 plus 3 n by 2 होना चाहिए. If count 3 n by 2 है, 2 plus 1 n by 2 होना चाहिए, right? These are the sum of conjugates. Okay? So if my flag becomes true in either of these cases, right, I will just simply print a yes, else I will be simply printing a no. Okay? I hope this is clear. Okay? So let's move to finally our last question now. Okay. So this is going to be our last question. This is okay, completion, easy version. So this says that you are given a permutation here. Okay, permutation is of length 2n. Okay, even length, and it contains. I hope that you are familiar with what a permutation is. Permutation is an array which contains all the numbers from 1 to n. Okay, in this case, it is from 1 to 2n. So as it is a 2n size array, so it contains all the numbers from 1 to 2n exactly once. Okay, and it doesn't matter, the order doesn't matter, so that is a permutation. It contains unique elements. So some of the elements are missing, okay, and they are represented by zeros. So you have to find the number of filling the zeros such that you obtain this value, p1 minus p2 plus p3 minus p4, the absolute value, and you take a sum of this, and you have to maximize this, okay, such that the quantity is maximized. Okay? And in this version of the easy program, the additional constraint of the input is that the even positions are zero here. Okay, that is कि मतलब ऐसा होगा कि इवन पोजीशंस पे हमेशा जीरो प्लेस्ड होगा, एंड इट कैन बी अ केस कि ऑड पे जीरो प्लेस हो भी या ना भी हो. ठीक है. And since the answer can be large, you have to print it modulo to this number. Okay, and this is the. So let's analyze the question first. The question says the problem statement is like quite easy. Okay, we are given an array, and that is of size 2n. It is going to contain all numbers from 1 to 2n. ठीक है. Now अब वो question में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में इट सेज दैट कि जितने भी इवन इंडाइसेस है ना, दिस इज द कंस्ट्रेंट ऑन इनपुट कि हर इवन इंडाइसेस पे पहले से जीरो रखा हुआ है. अब जरूरी नहीं कि ये जो ऑड इंडाइसेस जो बचे हैं वहां पे जीरो है ना. हो सकता है कि वहां पे जीरो हो सकता है ना भी हो. विल सी. मान लेते हैं अभी के लिए वहां पे जीरो नहीं है, इससे कि यहाँ पे 1 है, 3 है, एंड यहाँ पे 5 है. ठीक है. तो अब तुम ये देखो कि अब इसमें जो हमको जो वैल्यू मैक्सिमाइज करने की बात की गई है, दैट इज व्हाट दैट वैल्यू इज p1 minus p2 absolute value, okay, plus p3 minus p4 plus p5 minus p6, right, absolute value, and so on till p of 2n minus 1 minus p of 2n, right. अब तुम इसमें ये देखो कि वी आर जस्ट पेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स, राइट, कि वो इवन साइज की एरे रहेगी. We are just pairing the adjacent elements and we are taking absolute difference in them. So we just care about pairing, right? If we pair up these, and these, ठीक है, and so on. अब तुम ये देखो कि you can replace zeros. मतलब जीरो की जगह तुम कोई और वैल्यू रख सकते हो, लेकिन तुम कौन सी वैल्यू रखोगे? यू हैव टू इंश्योर कि वो परम्यूटेशन बना रहे. मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि let's erase this. ठीक है. I'm trying to say is let's consider an example. ठीक है. Let's consider an array of size 6. ठीक है. तो लेट्स कंसीडर दिस इज ऑफ साइज 6, तो यहाँ पे जीरो इनिशियली होगा ऑन इवन इंडेक्स. ठीक है. तो तुम ये देखो कि
जो भी अब तुम मान लेते कि ऑड इंडाइसेस पे कुछ रखा था, मान लेते 1 रखा था, 6 रखा था एंड 2 रखा था, ठीक है। अब तुम ये देखो कि वी नो कि हमने पेयर्स ऐसे एडजेसेंटली बनाने हैं एंड वी नीड टू लाइक मैक्सिमाइज दिस डिफरेंस। हमको ये डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है, तो सम ऑफ डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है, राइट। सम ऑफ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। तो अब तुम एक चीज देखो, ये मैक्सिमाइज कब होगी? ये मैक्सिमाइज तब होगी यार, जब तुम जब तुम इसका लाइक अदर पार्ट ऑफ द चीज रखोगे, मतलब कि आई एम ट्राइंग टू से, मान लेते हैं कि अगर तुम वन के साथ वैल्यू ढूंढ रहे हो कि वन के साथ क्या रखें, तो ग्रीडीली तुम अवेलेबल वैल्यूज क्या है, 1 6 और 2 तो यूज्ड वैल्यूज है, तो अब तुम्हारे पास बचा क्या 1 से 6 तक? 2 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा, ठीक है। ये तुम्हारे पास अवेलेबल वैल्यूज है। तो अब इनमें से तुम खुद सोचो तुम क्या रखना चाहोगे। तुम रखोगे 5, है ना? तुम 5 रखोगे यहाँ पे। और तुम 6 के साथ क्या रखोगे? अब 6 के साथ तुम क्या रखोगे? 6 के साथ तुम रखोगे 3, राइट। ओके, ठीक है, 3 है। और 2 के साथ क्या बचा? 4। तो अब तुम ये देखो कि व्हाट इज द सम ऑफ माय डिफरेंसेस हियर। सम ऑफ माय डिफरेंसेस हियर इज, and minus 5 is 4, मतलब absolute value, 6 minus 3 is 3 and 2 minus 4 is 2. So sum comes out to be 9 here. Okay, right? अगर तुम इस चीज को ध्यान से एनालाइज करो, ठीक है, तो you will get a thing कि like the sum is always like, if you rearrange it a bit, मतलब कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? अगर तुम्हारे पास ये 6 वैल्यूज हैं, तो अगर तुम मान लेते हैं कि सब जीरो दिया हुआ था एरे में, नाउ यू हैव टू चूज कि तुम किस किस का पेयर बनाओगे। तो ग्रीडीली तुम क्या करोगे? 1 और 6 को चूज करोगे, है ना? 2 के लिए 5 को चूज करोगे, है ना? 3 के लिए 4 को चूज करोगे, मतलब कि तुम इन एलिमेंट्स को चूज करोगे। यू विल पेयर अप लाइक दिस, दिस, है ना? यू विल एंड अप पेयरिंग अप लाइक दिस। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को लेकर तुम चलोगे तो you can say safely कि this is the maximum possible, this strategy is going to give me maximum possible results का sum, ठीक है। And that sum is nothing but, let me tell you that sum would come out be nothing but n square, right? It's going to be n square for each n. Like this is like, if you like do observations, like you will get this कि why it is n square. So let me give you a hint कि why it is n square. मतलब मान लेते हैं कि अगर दो वैल्यूज थी, है ना, इट इज 1, इट इज 2, तो डिफरेंस इज, सम ऑफ डिफरेंस इज आंसर 1। अगर चार वैल्यूज होती, ठीक है, अगर अगर चार वैल्यूज होती तो मैं कैसे पेयर करता? 1 4 एंड 2 3, ठीक है। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है? 2 और 3 का डिफरेंस अगेन 1 है, और 1 और 4 का डिफरेंस क्या है? 3 है ना? अब मेरा आंसर क्या हो गया? 1 + 3, ठीक है। अगर मैं साइज 6 ले लूं, तो मैं कैसे पेयर अप करूंगा? आई विल पेयर अप 1 6, ठीक है। आई विल पेयर अप 1 6, आई विल पेयर अप 2 with a 5, I'll pair up 3 with a 4. Yeah, this is going to be our pairs. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का। दिस इज गोइंग टू गिव मी 5 + 3 + 1 विच इज 9, ठीक है। तो अब तुम इसको ध्यान से अगर देखो ना, तो अगर ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल कंक्लूड कि दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। जब साइज 2 था तो सम 1 था, देन साइज 4 हुआ, इट बिकम 1 + 3, साइज 6 हुआ, it become 1 + 3 + 5. And what is sum of odd numbers?
Sum of odd numbers is nothing but n square, right? That's why I concluded कि this is n square. Sum is always going to be n square, right? अब हम बात कर लेते हैं अम, हम इस पे बात कर रहे थे, तो हम बात कर लेते हैं इस चीज पे कि वी हैव कंक्लूडेड, हाँ, वी वर हियर, ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड कि सम इज एन स्क्वायर, ठीक है, सम इज एन स्क्वायर. अब द थिंग टू नोटिस हियर इज कि वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि तुम वन को किसके साथ पेयर कर रहे हो? वन को सिक्स के साथ पेयर कर रहे हो, टू को फाइव के साथ, थ्री को फोर के साथ. अगर तुम वन को अगर तुम वन को फोर के साथ पेयर कर दो, टू को सिक्स के साथ और थ्री को फाइव के साथ, इंटरेस्टिंग थिंग है इज कि डिफरेंस का जो सम है वो नहीं बदलेगा. डिफरेंस तो बदलेगा, सम नहीं बदलेगा. इट इज थ्री, इट इज फोर एंड इट इज टू. फोर प्लस थ्री प्लस टू इज अगेन नाइन. इट इज नॉट चेंजिंग द डिफरेंस, राइट? तो व्हाट ये चेंज कब तक नहीं करेगा? ये तब तक नहीं करेगा अ, जब तक तुम अगर वन को पेयर कर रहे हो ना, वन को इन तीन में से किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, लाइक फोर फाइव एंड सिक्स में से, ठीक है. एंड सिमिलरली तुम टू को भी अगेन जो बचे हुए तीन में से होंगे उसके साथ पेयर कर दो, अगेन फॉर थ्री. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हाट माय आर्ग्यूमेंट इज कि अगर तुम हमेशा ऐसा करो, ऐसा कि ठीक है, ऐसा करते हैं हमेशा कि जो अगर दिस इज एन एंड दिस इज टू एन, तो अगर एन के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट है, उसको अगर तुम एन के राइट वाले एलिमेंट से पेयर अप कर दो, ठीक है, और हमेशा तुम ये पैटर्न मेंटेन करके चलो और पेयरिंग हमेशा इसी पैटर्न से करो, एंड आई कैन गारंटी दिस कि हमेशा द आंसर वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम सम डिफरेंस. ओके, so this is my argument. So moving with this argument, ठीक, I have given intuition also of this argument. ठीक है, तो अब तुम इसमें ये देखो कि अब मान लेते हैं, तो हमारे पास केस क्या था? हमारे पास एरे गिवन थी, एरे में हमारे पास इवन नंबर पे जीरोस थे, ठीक है, इवन नंबर पे जीरोस थे. अब मेरे पास बचता क्या है? मेरे पास सिर्फ ये बचता है कि मैं ऑड नंबर्स को भर सकता हूँ. नहीं, बस सॉरी, अगर मान लेते हैं कि ऑड नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स आर फिल्ड, तो मैं सिर्फ इवन नंबर्स पे कुछ कुछ एलिमेंट्स रख सकता हूँ. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो ऑड नंबर्स फील्ड है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनमें से कुछ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू एन रहेंगे और कुछ ग्रेटर देन एन रहे होंगे, ठीक है. अगर लेस देन इक्वल्स टू एन नंबर्स का काउंट टू है, ग्रेटर देन एन नंबर्स का काउंट वन है, तो ये तो यूटिलाइज्ड है. अब बचे कितने? लेस देन इक्वल टू वन के पास बचे कितने? वन. और ग्रेटर देन वन के पास बचे कितने? टू, ठीक है. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो लेस देन इक्वल टू एन के जो दो नंबर्स जो पहले से फील्ड है ना, उन दोनों को ये दोनों ग्रेटर देन एन वाले के साथ पेयर अप करना है. एंड ये जो ग्रेटर देन एन का एक नंबर पहले से है, इसके साथ पेयर अप करना है. पेयर अप करना है किसको किसके साथ करना है, दैट डजंट मैटर, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सम. दैट मीन्स here comes into play the part combinatorics. What is combinatorics here? This simply means कि अगर यूटिलाइज जो लेफ्ट वैल्यूज है, लेफ्ट वैल्यूज में से लेस देन इक्वल्स टू एन और ग्रेटर देन एन, दो तरह की वैल्यूज में अगर मैं उनको लाइक डिस्ट्रीब्यूट लाइक कैटेगराइज करूं, तो अगर जो लेस देन इक्वल्स टू एन की जो बची हुई वैल्यूज है उसका काउंट अगर एक्स है और ग्रेटर देन का वाई है, तो एक्स इंटू वाई इज गोइंग टू, not x into y, like factorial x into factorial y is going to give me the total number of possible combinations. How it is going to give me? It is going to give me कि मान लेते हैं हम लेस देन इक्वल टू एन वाली पेयरिंग की बात कर रहे थे, ठीक है. मतलब कि मान लेते हैं कि मेरा किसी और इंडेक्स पे सिक्स रखा हुआ था और किसी और इंडेक्स पे फाइव रखा हुआ था, ठीक है. अब मैं इसको लेस देन इक्वल टू एन वाले नंबर के साथ अगर पेयर करूंगा, तो मान लेते हैं कि मैं इसको वन के साथ पेयर करता हूँ, फाइव को टू के साथ पेयर करता हूँ.
ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 1 को 5 के साथ पेयर करूँ, 2 को 6 के साथ पेयर करूँ, है ना? दैट सिंपली मीन्स कि जो बचा हुआ जो लेस देन इक्वल टू n है, सिंपली मीन्स फैक्टोरियल ऑफ x, राइट? फैक्टोरियल ऑफ x टाइम्स मैं इसको परम्यूट कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है? सिंपली मीन्स दैट। एंड सिमिलरली फॉर factorial y times for greater than n, you know? And I will get my answer when I multiply factorial x by factorial y. That is, these number of possible ways are there to arrange, you know, the zeros which are at even position. ठीक है? अब एक केस जो इसमें बच जाता है वो ये बच जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि ऑड नंबर पे भी जीरो, है ना? ऑड नंबर पे भी जीरो, उस केस में क्या हो रहा होगा? उस केस में ऐसा होगा कि जो ऑड नंबर पे कभी जीरो आया ना, मैंने इवन वाले केसेस डील कर लिए। अगर मान लेते हैं कि ऑड नंबर पे कभी जीरो आया, तो मान लेते हैं ये दोनों मैंने डील कर लिए। ऑड नंबर पे अगर जीरो है तो मतलब यहाँ पे जीरो रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे जीरो रहा होगा। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो ऑब्वियसली ये भी जीरो होगा, क्योंकि इवन नंबर पे तो जीरो होना ही होना है। दैट मीन्स कि एक ऐसा पेयर मिलेगा जहाँ पे दोनों वैल्यू जीरो है, राइट? इस केस में होगा ये कि इस केस में होगा ये कि तुम इसको भी रख सकते हो और इसको भी रख सकते हो, राइट? तुम क्या करो कि अब तुमको पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग तुम एज इट इज करो जैसे तुम पहले करते आ रहे थे, ठीक है? मतलब यू वर डूइंग फैक्टोरियल एक्स इनटू फैक्टोरियल वाई, राइट? बट बट व्हाट हैपेंस हियर इज कि तुम इसमें अ, एक फैक्टर और इंक्लूड करोगे कि व्हाट इफ द पोजीशंस ऑफ दिस एंड दिस गेट्स स्विच्ड। मतलब कि अगर तुमने मान लेते हैं 6 और 1 की पेयरिंग करी थी, यहाँ पे तुम 1 और 6 भी तो रख सकते हो, इट डजंट मैटर, राइट? सो सिमिलरली मतलब अगर मान ये तो एक ऐसा पोजीशन था जिन पर ये एक ऐसी पोजीशन थी जहां पर इनको हमने इसे फ्लिप किया आपस में, राइट? तो यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग लाइक फैक्टोरियल एक्स इनटू फैक्टोरियल वाई विद अ 2, ठीक? विद 2। तो मान लेते हैं ये तो एक पोजीशन थी, मान लेते हैं ऐसी दो पोजीशंस होती तो, ठीक है? उसके लिए एक अलग एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर दो पोजीशंस ऐसी होती, ठीक है? अगर दो पोजीशंस ऐसी होती, मान लेते हैं कि एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है जहाँ पे जीरो जीरोस है, तो अगेन यहाँ पे फैक्टोरियल एक्स इंटू फैक्टोरियल वाई वाला फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, है ना? बट व्हाट विल कम इनटू प्ले इज, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पे ये जो तुमने पेयर बनाया है ना, ये दो पेयर जो बनाए हैं, ये दो पेयर्स भी आपस में स्विच कर सकते हैं ना? मतलब व्हाट इफ दिस एंटायर पेयर गेट्स स्विच्ड, राइट? तो फॉर दिस थिंग, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं, तो दिस थिंग विल कंक्लूड इन कि what is going to be my final answer? My final answer is going to be, if I generalize all of this, my final answer would be factorial of, okay, my final answer is going to be uh, factorial of x multiplied by factorial of y multiplied by 2 to the power what? 2 to the power what? 2 to the power number of positions. Sorry, just a second. This is not clear. 2 to the power number of positions, number of ऑड पोजीशंस, ठीक है? नंबर ऑफ ऑड पोजीशन जहाँ पे जीरो प्रेजेंट है। तो दिस थिंग इज क्लियर कि व्हाई वी आर डूइंग फैक्टोरियल एक्स इनटू फैक्टोरियल वाई, व्हाई दिस थिंग वी आर डूइंग एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट कि एक
एक टू तो इस वजह से आएगा कि पेयर में आपस में स्विचिंग हो रही है, ठीक है? और एक टू इस वजह से आएगा कि ये पेयर्स आपस में स्विच हो जा रहे हैं, ठीक है? So to accommodate all these things, so we will multiply this whole thing by a factor of 2 to the power odd positions, right? So that is all. So this is going to give me my final answer. Factorial x into factorial y into 2 to the power of odd positions. Okay. So let's see the implementation part of this. Okay. So this I have done in my template. Sorry for that, but no worries. Nothing much is there to worry about this. Okay, I'll explain you. See, this is your main function, ठीक है? यहाँ पे टेस्ट केसेस इनपुट हो रहे हैं. Forget all of these lines. These are not of what you want to use. यहाँ पे टेस्ट केसेस इनपुट हो रहे हैं and calling the solve function. ठीक है? अब solve function समझो. That's it. Just don't have to worry about anything else. ठीक है? Solve function है what I'm doing. I'm taking n at the size of like given n, and 2n is the size of array. ठीक है? I'm taking 2n. I will take input. Okay? I'm taking odd positions. Odd positions क्या calculate कर रहा है? Odd positions is like if odd position पे if odd position पे जीरो encounter आया, तो जीरो अगर encounter हुआ, I will just increment odd positions by one. So I have to like multiply this by 2 to the power of odd positions, right? So since modular arithmetic is also involved in this question, so pay attention to that also. If array odd positions, so if array of I is zero, ठीक है? If this is zero and I modulo 2 is zero, because this is zero based indexing, so I'm taking I as even. It is going to increase my odd position count, and also I'm taking a count and count 2. What is count and count 2? Count 2 and count 2 is nothing but x and y. X and y. As I have explained, x is the count of that. Okay. X is the count of those elements which are less than equal to n, you know, and y is the count of those elements which are greater than n. Okay. So I'm taking count and count. Okay. So if I have to calculate the remaining values less than equal to n, what I will do, I will just do a update of n minus count. ठीक है? I will update count with n minus count. Similarly, I will update count with n minus count. ठीक है? Now I will initialize my answer with power of this is like power of 2 raised to the power odd position. ठीक है? जिसकी हम बात कर रहे थे कि दिस इज द फैक्टर. दिस इज टेकिंग इनटू अकाउंट कि अगर ऑड पोजीशन पे जीरो आ जाता तो क्या करना है. ठीक है? एंड फाइनली आई विल मल्टीप्लाई व्हाट आई विल मल्टीप्लाई टू माय आंसर व्हाट आई विल मल्टीप्लाई माय आंसर विद like factorial of count into factorial of count 2. This is like mod mul is like multiplicative function. Okay, it is going to multiply two values modulo mod. Okay, and your mod value is given in the question. तो फैक्टोरियल यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टोरियल क्या करना है. फैक्टोरियल इज गोइंग टू सिंपली गिव यू द फैक्टोरियल वैल्यू, है ना. एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल वैल्यू, सी फैक्टोरियल फंक्शन इज है. व्हाइल कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल वैल्यू आई एम कैलकुलेटिंग मॉड मल हियर. मतलब मल्टीप्लाई जो मैं कर रहा हूँ दैट इज आई एम डूइंग मॉड मल्टीप्लिकेशन हियर. व्हाट इज मॉड मल्टीप्लिकेशन? लेट्स सी हियर. Mod multiplication is this. It is going to give A modulo mod, B modulo mod, and it is returning A into B modulo mod. Okay, just this thing. So nothing to like worry about this template. You just see कि जितना तुम्हारे काम का. तो यहाँ पे बस इतना सा हो रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ काउंट इनटू फैक्टोरियल ऑफ काउंट हम कर रहे हैं मॉड्यूलो मॉड. ठीक है, एंड दैट इज आई एम मल्टीप्लाइंग विद माय आंसर एंड आई सिंपली प्रिंटिंग माय आंसर. So that is all for this contest post discussion session. Okay. So I hope all questions were clear to you. If any query is left, then please let me know in the comment section. I'll surely try to resolve it. Okay. And if any more suggestions are there, I'll like implement. I'll try to implement all the possible required
जो भी तुम्हारे सजेशंस होंगे, our team will go through that very carefully, and अगर वो पॉसिबल है we will implement it, ठीक है? And do let me know if you want to do this thing as live, ठीक है? Okay, so okay, so thank you everyone.